میرا نام سمیرہ ہے اور آج میں اپنی کہانی سنانے والی ہوں۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، مگر میری کہانی جو سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاش میں کبھی عام سے خاص بننے کی کوشش کرتی تو میرے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ آج میں جس حال میں ہوں، کوئی اور ہوتا تو شاید کب کا مر جاتا، مگر مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ میرے پاس گزری ہوئی زندگی کی حسین اور بھیانک یادوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی دوست، نہ دشمن، بلکہ میرا تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایک ہنستی کھیلتی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن ہمارے خاندان میں بھی اور جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر بھی زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فرسودہ رسم و رواج اور پرانے خیالات کے مالک لوگوں کے درمیان رہنے والا کوئی بھی انسان بالکل ان کے جیسا ہی ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا ماحول نہ بدل جائے، لیکن ہمارے ہاں تو اس کا بھی الٹ ہی ہو رہا تھا۔ اگر خاندان یا جاننے والوں میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی تھا تو وہ بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی تربیت اور پرورش تو اسی ماحول میں ہو رہی تھی جہاں پر گھٹن کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم 7 بہنیں تھیں، بہنوں میں چھٹا نمبر میرا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن جب پیدا ہونے والی تھی اس وقت اماں، ابا اور پورے خاندان کو صرف اور صرف بیٹے کی خواہش تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ابا اماں نے صرف بیٹے کے لیے ہی اتنی بیٹی پیدا کی تھی، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی اتنا بوجھ اپنی زندگیوں پر ڈالنے کی۔ میں اس وقت 2 سال کی تھی جب میری چھوٹی بہن اس دنیا میں آئی اور ساتھ ہی میرے اماں ابا مایوس ہو گئے۔ اب تو بس کھینچ تان کر وہ ہم 7 بہنوں کو جیسے تیسے پال پوس کر اپنے گھر اور کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے جی رہے تھے۔ ہم اپنے گھر میں بالکل ایسے تھے جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو اماں ابا سے توجہ ملتی تھی۔ اماں سارا وقت سر پر دوپٹہ باندھے اپنے مقدر کے ساتھ بیٹیوں کو بلا وجہ کوستی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تھا تو اماں کی بجائے مجھے بڑی آپا نے اسکول جانے کے لیے تیار کیا اور ناشتہ بھی مجھے اسی نے کروایا تھا، جبکہ میں شروع سے ہی اماں اور ابا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں اس محبت کے لیے دن رات ترستی تھی جو ماں باپ سے ہر بچے کو ملتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ میری ساری بہنیں اس بات کو محسوس نہیں کرتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل سے یہ خواہش جاتی ہی نہیں تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ابا ہم سب بہنوں کے لیے مزے مزے کی کھانے پینے کی چیزیں لائیں، ہماری فرمائشیں پوری کریں اور ہم اپنے ابا کے ساتھ باہر جایا کریں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اماں نے کبھی بھی ہم سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانا تو دور کی بات تھی، اماں تو ہمارے ساتھ کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ اپنے کمرے میں یا برآمدے میں رکھے پلنگ پر بیٹھی رہتی تھی۔ اماں نے تو گھر کا سارا کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف سالن بناتی تھی۔ باقی گھر کا سارا کام میری بڑی بہنیں کیا کرتی تھیں۔ میری سب سے بڑی بہن 14 سال کی تھی، وہی گھر کے کاموں اور ہم سب کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ تو میری کسی بھی بہن میں احساس نام کی کوئی چیز تک نہیں تھی۔ اگر ہم میں سے کسی کو چوٹ لگ جاتی تو بڑی آپا کے سوا کوئی بھی اسے پوچھتا نہیں تھا۔ کوئی بیمار ہوتا تب بھی وہ اپنے حصے کا کام خود ہی کرتا تھا۔ جب ہماری ماں کو ہی ہمارا احساس نہیں تھا تو بہنوں نے کیا کرنا تھا؟ اس طرح ایک عجیب سی بے حسی ہم سب کے اندر بچپن سے پل رہی تھی۔ اور پھر جب میری چھوٹی بہن 1 سال کی ہوئی تو اماں ایک مرتبہ پھر امید سے ہو گئی۔ حالانکہ جس طرح کی اماں کی حالت تھی اس کے بعد تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اماں پھر سے کسی بچے کو جنم دے سکے، لیکن بیٹے کی خواہش نے انہیں ہر حد تک لے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور جب آخری مرتبہ انہیں پتا چلا کہ وہ امید سے ہیں تو اماں اور ابا نے بہت سی منتیں مرادیں مان لی۔ ابا تو آئے دن پتہ نہیں کس کس مزار اور درگاہ سے تبرک لا کر ماں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ ابا نے کوئی ماں بارگاہ بھی نہیں چھوڑی۔ ابا کا بس چلتا تو شاید وہ ہر مسجد اور مندر میں بھی چلے جاتے۔ وہ اماں کو منت ماننے کے نام پر جو چیزیں لا کے دیتے تھے اماں وہ کھاتی تھی۔ اس کے علاوہ اماں خود بھی کبھی کسی بابا کے پاس تو کبھی کسی مزار پر منت کے دھاگے باندھنے جایا کرتی تھی۔ اسی بہانے سے ہر دوسرے دن ہمیں بھی طرح طرح کی چیزیں کھانے کو مل جاتی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ بالکل ایک شغل میلے کی طرح تھا۔ ہم بھی یہ سوچ کر بھائی مانگنے لگ گئے کہ اس کے آنے سے شاید ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارا بھی کسی کو کوئی احساس اور قدر ہو جائے۔ ہم سب بہنوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ اب ہمارے گھر چھوٹا سا بھائی آ جانا چاہیے، اور پتہ نہیں کس کی کون سی دعا قبول ہوئی یا خواہش پوری ہو گئی۔ جب واقعی 7 بیٹیوں کے بعد اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا
घर में जश्न का समा था। अब्बा और अम्मा के तो पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। 3 दिन अम्मा हॉस्पिटल में रहकर जब भाई को लेकर घर आई तो हमने पूरा घर सजाया हुआ था। सजावट की सारी चीजें हमें अब्बा ने ला कर दी थी। घर में मिठाई से लेकर खाने पीने की बहुत सी चीजें आई थी। यहाँ तक कि अब्बा ने 2 देगें चावलों की पकवा कर मोहल्ले में भी बांटी थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब हमें मुबारकें देने हमारे घर आते थे। पूरा 1.25 महीना ये सिलसिला चलता रहा। मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और इसी वजह से घर में खाने पीने की भी चीजें आती रहती थी। अब्बा ने खूब खर्चा किया था। हम हैरान होते थे कि अब्बा कभी 1 से ज्यादा फ्रूट घर में नहीं लाए थे और अब इस तरह घर में फ्रूटों की टोकरियां भरी रहती थी। और ये सब कुछ हमारे भाई की वजह से मुमकिन हुआ था। लेकिन हमारे दिल में अपने भाई के लिए कोई भी ऐसा जज्बा या नफरत पैदा नहीं हुई थी कि उसे हम 7 बहनों से ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो दी जा रही थी, बल्कि हम तो खुद अपने भाई से बेहद प्यार करते थे। उसी में तो हमारी जान बसती थी। हर वक्त हम लोग उसे गोद में उठा कर रखते थे। एक बहन छोड़ती तो दूसरी पकड़ लेती, दूसरी छोड़ती तो तीसरी पकड़ लेती। उसे तो उस वक्त प्यार का मतलब भी नहीं पता था जब उस पर बेहिसाब प्यार की बरसात हो रही थी। अब्बा ने उसका नाम हारिस रखा था। अम्मा बहुत कमजोर थी, लेकिन हारिस बिल्कुल सेहतमंद और बहुत प्यारा बच्चा था। हारिस 2 महीने का हो गया तब भी अम्मा ने पलंग से पैर नीचे नहीं उतारा। अब तो हांडी रोटी का काम भी मेरी दोनों बड़ी बहनें ही संभालती थीं। दोनों ने मैट्रिक कर लिया था। उसके बाद मुकम्मल तौर पर घर की सारी जिम्मेदारी उन दोनों के कंधों पर चली गई थी। हम बाकी 5 बहनें भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थीं, लेकिन जब हारिस स्कूल जाने के काबिल हुआ तो अब्बा ने उसे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वो अच्छी तालीम और तरबियत हासिल कर सके और फिर किसी अच्छी नौकरी पर लग के अपनी और माँ बाप की जिंदगी को संवार सके। अब्बा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हारिस जवान होगा तो उनकी सारी बेटियों की शादियां हो चुकी होंगी। इसीलिए उन्होंने कभी भी हारिस का जिक्र हम बहनों के हवाले से नहीं किया था। वो जब भी बात करते थे हारिस की जिम्मेदारी और फराइज में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का नाम आता था। 2-3 साल और गुजरे तो अब्बा ने दोनों बड़ी बहनों की शादियां एक साथ एक ही घर में कर दी। अब जिम्मेदारी उनसे छोटी 2 बहनों पर आ गई थी, जबकि मैं और मुझसे छोटी बहन शाजिया अभी अपनी पढ़ाई और हारिस को संभालने में ही मसरूफ रहते थे। और उसके आने के बाद अम्मा के रवैये में कुछ खास तब्दीली नहीं आई थी। बस ये फर्क आया था कि अब वो पहले की तरह अपनी तकदीर को कोसती नहीं थी और हमें गालियां नहीं देती थी, लेकिन अपना सारा प्यार और तवज्जो तो वो सिर्फ और सिर्फ हारिस पर ही लुटाती थी। अगर कभी गलती से भी हारिस को चोट लग जाती या वो बिला वजह भी रोने लग जाता, अम्मा पूरा घर सर पर उठा लेती थी। हम चारों की कमबख्ती उस वक्त आती थी जब हारिस अम्मा से हमारी शिकायत लगा देता था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मुझे घर के माहौल और अम्मा अब्बा के रवैये ने बहुत अजीब सा बना दिया था। बेहिसी तो हम लोगों में वैसे भी बहुत थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब तरह की आदत पनपने लगी थी। अगर कोई मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता था तो मैं उसे बदला लिए बगैर नहीं रहती थी। यहाँ तक कि मैंने हारिस के साथ भी यही सब करना शुरू कर दिया। अगर वो मेरी किसी बात पर शिकायत माँ से लगाता तो मैं मौका देखते ही उससे बदला लेती थी। कभी उसकी कोई चीज तोड़ देती तो कभी गुम कर दिया करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि वो अपनी चीजों के लिए रोए धोए और अम्मा को परेशान करते। फिर तो जैसे मैंने सबके साथ ही ये काम करना शुरू कर दिया। अगर बहनों से भी कोई मेरे साथ ऐसे करता तो मैं उसकी भी किसी न किसी चीज को या तो गायब कर देती या नुकसान पहुंचा देती थी। बाद में उनके रोने धोने देखकर मुझे सुकून मिलता था। मेरे अंदर ये आदत वक्त के साथ साथ पुख्ता होती जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे लिए ये आदत कितनी मुश्किलात का सबब बनेगी। एक मर्तबा स्कूल में भी ऐसे ही हुआ। मेरी क्लास में एक लड़की जो पढ़ने में सबसे अच्छी थी और क्लास के टीचर की बेटी भी थी, उसने मेरी शिकायत एक दूसरी टीचर से लगाई। हालांकि उसकी शिकायत गलत नहीं थी। उसके बावजूद मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने मौका मिलते ही ब्रेक टाइम में उसके बैग से उसकी होमवर्क वाली कॉपी और एक किताब निकाल ली और अपने बैग में रखकर घर ले गई। फिर दूसरे दिन जब उस लड़की ने सारी क्लास में वो किताब ढूंढी और उसका काम भी मुकम्मल था, लेकिन अब होमवर्क कॉपी नहीं मिल रही थी, तो उसकी परेशानी देखकर मुझे बड़ा सुकून आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि जब टीचर उसे डांट रही थी तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया था। वो सारा माजरा समझ गई। अगली सुबह उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तो उस दिन टीचर ने मुझे बहुत मारा था। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में थी। उसने डंडे मार मार के मेरे हाथ सुझा दिए थे। मैंने तो फिर स्कूल ना जाने की कसम खा ली। अम्मा और अब्बा ने मुझे समझाने की कितनी कोशिश की, मेरी बहनों ने भी बहुत जोर लगाया, मगर मैं अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटी और मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मेरे घर बैठने के बाद अम्मा को कहाँ सुकून मिलने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ना नहीं है तो घर के काम काज सीखो, और मुझे बड़ी बहन के साथ घर के कामों में हाथ बटाने का हुक्म मिल गया। मेरे लिए ये भी आसान नहीं था, लेकिन अपनी जिद की पक्की थी, इस वजह से स्कूल जाने के मुकाबले में
घर के काम करना कबूल कर लिया। मेरी दोनों बड़ी बहनें जो शादीशुदा थीं, वो जब भी आती मुझे पढ़ाई की अहमियत के बारे में बहुत समझाती थी, मगर मैं शुरू से ही ऐसी थी। एक मर्तबा अगर किसी चीज से इनकार कर देती या अपने दिल में कोई बात रख लेती थी तो फिर मुझे उस बात से कोई टस से मस नहीं कर सकता था। इस तरह मैं घर में ही रहने लग गई। जब मैं 17 साल की हो गई तो अम्मा अब्बा ने मेरी बाकी दोनों बड़ी बहनों की शादियां भी कर दी। उनकी शादियां भी एक साथ हुई थी, मगर वो दोनों अलग अलग घरों में ब्याह कर गई थी। अब घर में सिर्फ हम 3 बहनें बाकी थीं और हारिस था, जो कि अम्मा और अब्बा का बेहद लाडला बेटा था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर और मुझसे छोटी शाजिया पर आ चुकी थी। हम दोनों सारा दिन कामों में लगे रहते और तीसरे नंबर वाली बहन हारिस के साथ मसरूफ रहती थी। हारिस पढ़ने में अच्छा बच्चा था और वो भी मेरी तरह कुछ अलग मिजाज का था। जिद और खुदसरी उसके अंदर शुरू से ही आ रही थी, क्योंकि अब्बा और अम्मा के बेजा लाड प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया था। लेकिन उसकी दूसरी अहम वजह मैं भी थी, क्योंकि जब भी मैं ऐसी हरकतें करती थी तो हारिस मुझे देख देख कर मेरे नक्शे कदम पर चलने लग गया था। अब बहन भाइयों में घर में मौजूद सबसे बड़ी मैं ही थी, इसीलिए छोटे बहन भाइयों पर खूब अपनी मर्जी चलाती। अगर अम्मा मुझे किसी बात से रोकती तो मैं उन्हें भी मुंह भर के जवाब दे देती थी। सिर्फ एक अब्बा थे जिनके सामने मैं कुछ कह नहीं पाती थी। अब्बा ने एक जानने वाले हेडमास्टर से बात करके मेरा मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। हालांकि मैंने 8वीं के पेपर भी नहीं दिए थे, लेकिन अब्बा कहते थे कि इस तरह इसके रिश्ते के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि आजकल तो लोग पढ़ी लिखी लड़कियां मांगते हैं। मुझे अब्बा की इस बात पर बड़ी हंसी आती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे खानदान में पढ़ी लिखी और अनपढ़ लड़की एक बराबर ही थी। इसका सबूत तो मेरी 4 शादीशुदा बहनें भी थी, जो अपने ससुराल को उंगलियों पर नचाने का गुर जानती थी। उन्होंने ये सब कुछ अम्मा से ही सीखा था। मेरे 4 बहनोई अपनी अपनी बीवियों के इशारे पे चलते थे, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा था कि जब वो 4 मैके आती थीं तो अम्मा बाकायदा उनको ससुराल में राज करने और शौहर पर हुकूमत करने के गुर सिखाया करती थी। मैं तब सोचती कि हमारी अम्मा ने बचपन से लेकर अब तक हमें कभी कोई अच्छी बात नहीं सिखाई, ना ही हमारी तरफ कोई तवज्जो दी, लेकिन इन कामों में हमारी अम्मा खूब ट्रेनिंग कर रही थी। मुझसे छोटी शाजिया ने जब मैट्रिक कर लिया तो उसने भी बाकी बहनों की तरह स्कूल छोड़ दिया था, जबकि सबसे छोटी बहन पढ़ रही थी और वो आगे पढ़ना भी चाहती थी। दूसरी तरफ अम्मा को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई, इसलिए उन्होंने रिश्ते करवाने वाली को मेरा रिश्ता देखने के लिए कह दिया था। अम्मा ने हम 5 बहनों में से किसी की भी शादी के लिए खानदान में कोई रिश्ता नहीं देखा था। उसकी वजह यही थी कि अम्मा के खानदान में किसी से बनती नहीं थी। हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं खुद ऐसे खानदान से जान छुड़ाने के लिए तैयार थी। मेरे बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कहीं पर बात नहीं बन रही थी। कोई रिश्ता अम्मा को पसंद नहीं आ रहा था तो किसी में अब्बा को कोई न कोई कमी नजर आ जाती थी। मेरी अम्मा तो ये चाहती थी कि बड़ी 4 बहनों की तरह मेरी शादी भी छोटी फैमिली में हो, इसीलिए अभी तक मैं बची हुई थी। मगर फिर मेरे लिए वासिफ का रिश्ता आया, जो अम्मा को पहली मालूमात में ही बहुत भा गया था। ये रिश्ता भी रिश्ता करवाने वाले के तवस्सुत से ही आया था। जब उसने वासिफ और उसकी फैमिली के बारे में अम्मा को बताया तो अम्मा ने फौरन उन लोगों को चाय पर बुला लिया। वासिफ के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और घर में सिर्फ एक छोटी बहन थी। वासिफ एक अच्छी और बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता था। सैलरी भी उसकी बहुत अच्छी थी और घर भी अपना था। मुझे देखने के लिए वासिफ की खाला और पुप्पी आई थी। मैं वैसे भी रंग रूप में सारी बहनों से ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे फौरन पसंद कर लिया। अम्मा तो पहले ही जहन बनाकर बैठी हुई थी। इस तरह फटाफट ये रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद जब वो लोग तारीख लेने आए तो उस वक्त वासिफ की बहन भी हमारे घर आई थी। वो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी होगी, बिल्कुल हारिस की हम उम्र लगती थी। मेरी शादी की उन लोगों को भी जल्दी थी और मेरी अम्मा को भी, क्योंकि उनके घर में घर संभालने वाली की जरूरत थी और अब अम्मा को एक और बोझ से पीछा छुड़ाना था। इसी वजह से शादी 1 महीने बाद होना करार पाई। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुझे भी बड़ी बहनों की तरह गिना चुना जहेज ही मिला। मैं इन सब पर खुश नहीं थी, क्योंकि ना तो मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाई गई थी और ना ही किसी बात में मेरी मर्जी पूछी गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते पर इस वजह से खुश थी क्योंकि वासिफ की तस्वीर देखते ही वो मेरे दिल में उतर गया था। दूसरी वजह यह भी थी कि सास और ससुर या कोई और ससुराली रिश्तों का झंझट नहीं था। सिर्फ एक छोटी नंद थी, वो भी कब तक भाई के घर बैठी रहेगी। आखिर को उसकी भी शादी हो जानी थी। इस तरह घर और शौहर पर मेरा अकेली का राज होगा, यही सब सोचकर मैं खामोशी से दिन गुजार रही थी। अम्मा ने जो जैसी चीज दिलाई मैंने चुप करके रख ली और फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मा ने वासिफ के कपड़ों के साथ साथ मेरी नंद का भी एक जोड़ा बनवाया था और फिर जब मैं दुल्हन बन के वासिफ के घर गई तो वहाँ चंद एक मेहमान ही मौजूद थे। सबने बड़ी आओ भगत की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो रात तो सुकून से गुजर गई, लेकिन अगले दिन ही मेरे सुकून में बेसुकूनी
और बेकरारी का पहला छोटा सा पत्थर गिर गया था। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन सुबह को नाश्ते से जब सब लोग फारिग हो गए तो उनके यहाँ रस्म थी कि दुल्हन ससुराल वालों के लिए जो जोड़े वगैरह लाती थी वो सबको दिखाए जाते थे। अम्मा ने वासिफ के अलावा उसकी बहन का जोड़ा तो बनाया ही था, लेकिन एक एक जोड़ा पुप्पी और खाला का भी अम्मा ने मेरे जहेज में रखा था। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन गई थी। उसने सारे जोड़े निकाल के सबके सामने रख दिए, लेकिन वासिफ की बहन रामीन को अपना जोड़ा पसंद नहीं आया, तो उसने तो ये भी ख्याल नहीं रखा कि अभी शादी का दूसरा दिन है और घर में मेहमान मौजूद हैं, और मुंह बना लिया। ये देखकर वासिफ साहब का दिल फौरन पिघल गया। वो कहने लगे, अगर मेरी शहजादी बहन को ये जोड़ा पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, अपनी भाभी की अलमारी से जो भी सूट पसंद आता है वो ले लो। ये कहकर वासिफ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती थी। रामीन ने फौरन भाई की बात सुनकर मेरी अलमारी खोली और उसमें से सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाल लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखा और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि रामीन तो मिजाज और आदतों में शायद मुझसे भी 2 हाथ आगे थी, और फिर सबसे बड़ी मजबूरी तो मेरे लिए मेरे शौहर ही बनने वाले थे, क्योंकि मुझे नजर आ गया था कि वो अपनी बहन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। बस उसी दिन से मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी सोचें आना शुरू हो गई। वलीमे के बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए और मैं भी अम्मा के घर से होके वापस आ गई तो घर के काम मेरे मुंतजिर थे। हालांकि मेरी शादी को तीसरा दिन था और अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि मुझे घर संभालना पड़ गया। रामीन तो अब नवाबजादी थी। वो तब मैट्रिक में पढ़ती थी, स्कूल जाती और वापस आकर नवाबों की तरह अपने कमरे में घुसी रहती थी, और मैं सारा दिन घर के काम करती, बल्कि उसकी खिदमतें भी करती थी, क्योंकि तकरीबन रोजाना वासिफ मुझे ये कहना नहीं भूलते थे कि रामीन का ख्याल रखना, वो खाने पीने की चोर है, इसीलिए उसे खाना खुद देना। सुबह नाश्ते के बाद ऑफिस जाते हुए लाजमी वासिफ मुझे ये बात कहते थे, क्योंकि दोपहर के वक्त वो घर में नहीं होते थे, और जब शाम को वापस आते तब भी उन्हें सबसे पहले अपनी बहन अपनी नजरों के सामने चाहिए होती थी, और बहन भी भाई की आगे पीछे ही फिरती रहती थी। मैं या तो ज्यादातर कामों में लगी रहती या फिर उन दोनों की बातें सुनती रहती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि वो लोग किसी बात में मुझे शामिल करते, वरना ज्यादातर को उनकी बातें आपस में ही होती रहती थी। कभी कभी हंसी मजाक में लग जाते और कभी किसी और बात को मौजू बनाकर बैठ जाते थे। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के कभी खाना टेबल पर लगाती तो कभी उनको चाय बना कर देती थी। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपनी नंद के लिए अजीब से जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे वो कुछ ज्यादा ही भाई के करीब है, जिसकी वजह से मेरी वासिफ के दिल में और उस घर में वो अहमियत और कदर नहीं है जो कि होनी चाहिए। और उस अहमियत और कदर के लिए मैं सारी जिंदगी तरसती आई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे दिलो दिमाग में रामीन के लिए कुछ मनफी सोच पैदा ना हो, लेकिन ज्यादा दिन तक मैं अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी। एक दिन जब वासिफ ने मुझे अपने ऑफिस से ही फोन करके तैयार रहने के लिए कहा, वो मुझे उस रात डिनर पर ले जाने वाले थे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था, लेकिन हम दोनों कहीं पर भी बाहर घूमने फिरने नहीं गए थे, इसलिए मैं बड़ी खुश थी। उनके आने से थोड़ी देर पहले मैं बड़े दिल से तैयार हुई, और जब वो आए तो उन्हें पानी वगैरह देकर मैं उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे पूछा कि रामीन नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है, उसे भी कहो कि तैयार हो जाए और हमारे साथ डिनर पर चले। ये सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई, लेकिन मैंने अच्छी बीवी और अच्छी भाभी होने का ड्रामा किया और खामोशी से सर हिलाती हुई रामीन के कमरे में चली गई। मगर उसे तो बुखार था, वो सर से पैर तक कंबल ओढ़ कर लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, इसी बहाने से हम दोनों अकेले तो बाहर जा सकेंगे। मैंने जब जाकर ये बात अपने शौहर को बताई तो मेरी सारी तदबीरें उल्टी पड़ गईं। वो फौरन सारा कुछ छोड़ छाड़ कर बहन के पास चले गए। हालांकि उसे मामूली सा बुखार था, उसके बावजूद वासिफ वहाँ से हिले तक नहीं। डिनर पर जाना तो दूर की बात थी, वासिफ ने तो सारी रात बहन के कमरे में बैठकर पहरा दिया था। जैसे पता नहीं रात के किसी पहर उसकी बहन का दम ना निकल जाता। मुझे रह रहकर अपनी नंद पर गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं उस रामीन की वजह से अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जा सकी थी, दूसरा मैं ये अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरे शौहर के लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप ने सारी जिंदगी हमारे भाई की अहमियत दी और हमें पूछा तक नहीं, अब यहाँ पर भी मेरे साथ वही होने वाला था। जैसे लगता था कि मैं जैसे ही इस घर में सिर्फ नौकरानी की हैसियत से आई हूँ, जो बस उनकी खिदमतें करती रहूंगी, और पता नहीं रामीन की शादी कब होगी और कब वो यहाँ से जाएगी। लेकिन तब तक क्या मैं इसी तरह जलती कूटती रहूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे वासिफ ने मुझे आकर उठा दिया और कहा कि रामीन के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। उसका बुखार उतर चुका था और अब उसका कुछ खाने को दिल चाह रहा था।
लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके नाश्ते में जहर मिला दूं ताकि मेरी जान उससे छूट जाए, मगर अफसोस तो यही था कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैंने रामीन से जान छुड़ाने के तरीके सोचना शुरू कर दिए थे। बड़े जब्त और कोशिशों के बाद मैं उस घर में 6 महीने गुजार सकी थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और मैं रामीन के साथ भी वही सलूक करूंगी जो बचपन से बाकी सबके साथ करती आई थी। और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उसे या उसकी किसी चीज को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी तो बात सीधी सीधी मुझ पर आएगी, क्योंकि घर में मेरे अलावा तो वो दोनों बहन भाई ही थे। इसीलिए मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। उसका कॉलेज शुरू हो चुका था और वासिफ ने उसे मोबाइल फोन भी ले दिया था। अब तो वो टीवी या मोबाइल से ही चिपकी रहती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किससे बातें करती रहती है, लेकिन हर वक्त फोन उसके हाथ में होता था। पहले तो मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही थी, मगर अच्छी तरह जानती थी कि वासिफ कभी भी अपनी बहन की इतनी जल्दी शादी पर तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक दिन वासिफ से बात की तो उन्होंने वही जवाब दिया जिसकी मुझे तवक्को थी। वो कहने लगे कि अभी तो रामीन बहुत छोटी है, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। मैं तो चाहता हूँ कि वो कोई जॉब भी करे ताकि उसे कुछ दुनियादारी का तजर्बा भी हो, फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में करूँगा। वासिफ की तो इतनी लंबी प्लानिंग सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया। फिर एक दिन जब रामीन स्कूल से आई और खाने के बाद अपने कमरे में चली गई तो हस्बे मामूल मैं उसके लिए चाय लेकर उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मोबाइल फोन पर किसी से बातें करने में मसरूफ थी। उसने मुझे देखते ही फोन रख दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं जो करना चाहती थी, मुझे इस बात का अंदाजा था कि वो काम दुरुस्त नहीं है, मगर मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब मैंने मौके की तलाश शुरू कर दी। अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने वो सारे इंतजामात कर लिए जो जरूरी थे। और फिर एक दिन मौका मेरे हाथ लग गया जब रामीन कॉलेज से घर आकर अपने कमरे में बंद थी। तो मैंने शाम के वक्त वासिफ के आने से कुछ देर पहले किसी बहाने उसे छत पर भेज दिया। वो मुंह बनाती हुई छत पर चली गई तो मैंने मोहल्ले के एक लड़के को घर में बुलाया और उसे रामीन के कमरे में जाने का कहा। थोड़ी देर बाद वो ऊपर से नीचे आई और दोबारा अपने कमरे में चली गई। उसी वक्त बैरूनी गेट से वासिफ घर में दाखिल हुए तो मैं घबराई हुई वासिफ के पास गई और मैंने कहा कि पता नहीं रामीन के कमरे में कौन सा लड़का मौजूद है, अंदर से आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर वासिफ ने फौरन अपना सूटकेस रखा और मेरे साथ रामीन के कमरे की तरफ जा रहे थे कि उसी वक्त रामीन भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और पीछे ही वो लड़का था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने भाई को देखा तो और घबरा गई, लेकिन फटाफट अपने भाई के सीने से लग गई और कहने लगी कि पता नहीं ये कौन है और मेरे कमरे में कैसे आ गया। तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए झूठ बोल दिया कि वासिफ इसी की आवाजें अंदर से आ रही थी। ये काफी देर से अंदर था और मैं बाहर खड़ी सुन रही थी। उसी वक्त वो लड़का भागता हुआ घर से बाहर निकल गया तो वासिफ को इस बात पर यकीन हो गया कि वाकई उसे रामीन ने ही कमरे में बुलाया था। वासिफ का गुस्सा बहुत बुरा था। जिस बहन पर वो जान छिड़कते थे और उसी पर अंगारे बरसा रहे थे। वासिफ ने रामीन के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कह दिया। मैंने वासिफ को रोकने की कोशिश की और कहा कि उसे घर से मत निकालें, बस इसकी शादी किसी अच्छी जगह पर कर दें। लेकिन वासिफ ने मेरी एक भी न सुनी और दोबारा अपनी बहन को घर से निकलने के लिए कहने लगे। वो भी आखिर रामीन थी। उसने भी कुछ सोचा न समझा और फौरन घर से बाहर चली गई। उसके जाते ही मुझे अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी की बात करके किसी जगह उसकी शादी करवा के जान छुड़ा लूंगी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए मेरे घर से दफा हो चुकी थी। वासिफ बड़े परेशान थे, बल्कि उन्होंने तो इस बात के बाद ना खाना खाया और ना ही मुझसे नजरें मिला रहे थे। रामीन को घर से गए हुए 4-5 दिन गुजर गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन मैं बड़ी खुश थी। अलबत्ता वासिफ की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो ना तो ठीक से खाते पीते थे और ना ही मुझसे बात करते थे। मैंने सोचा खुद ही कुछ दिन में सेट हो जाएंगे। फिर मैं अम्मा की तरफ जाने का सोच रही थी तो वासिफ ने सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मा की घर छोड़ दिया और खुद बाहर से ही अपने ऑफिस चले गए। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी थी, क्योंकि वहां पर रामीन मेरे भाई के कमरे से बाहर निकलती हुई मुझे नजर आई। मुझे देखकर वो फिर रुक गई। अम्मा अब्बा बरामदे में बैठे थे। मैंने किसी को सलाम किया, ना किसी का हाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर क्या कर रही है, तो उसी वक्त मेरा भाई कमरे से बाहर आया और कहने लगा कि बज्जो, तुमने रामीन के साथ जो करना था वो कर लिया। उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया। तुमने क्या सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब तुम्हारी साजिश थी? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि उस दिन फोन पर मैं ही रामीन से बातें कर रहा था। मैंने सोचा था कि सही वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि मैं रामीन को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ,
मगर तुमने तो बड़ी जल्दी की अपनी नंद से जान छुड़ाने की। जब उसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया तो ये सीधी यहाँ पर आ गई। मैंने अम्मा अब्बा को सब बात बता दी थी, इसीलिए उन्होंने हम दोनों का निकाह करवा दिया और अब ये मेरी इज्जत है। मैं ये सब कुछ सुनकर वहीं पर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या कहूं। उसी वक्त बाहर का दरवाजा जोर से खुला और वासिफ अंदर आए और मेरी हैरानी की इंतहा न रही। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी क्योंकि मैं अपना मोबाइल कार में ही भूल गई थी और मुझे वही देने के लिए वो मेरे पीछे आए थे। लेकिन यहाँ पर ये सब बातें सुनकर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और अपनी बहन से माफी मांगकर वहां से चले गए। पल भर में मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैंने जो घड़ा रामीन के लिए खोदा था, मैं अब उसमें खुद गिर गई थी। आज इस बात को काफी साल गुजर चुके हैं। मैं अब भी अपने अब्बा के घर में ही रहती हूँ, जहाँ पर मेरा भाई और रामीन मेरे साथ रहते हैं। अब्बा का इंतकाल हो चुका है। सबके होने के बावजूद उस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे जरूरत के अलावा बात नहीं करता। वासिफ भी दूसरी शादी कर चुके थे। काश मैं अपनी नंद के साथ वो सब ना करती तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। मैं बड़ी थी, मुझे अपना दिल भी बड़ा कर लेना चाहिए था, मगर मैंने तो 16 साल की एक मासूम लड़की के साथ दुश्मनी कर ली थी। लेकिन असल में अपनी दुश्मन मैं आप थी और मुझे ये सजा सारी जिंदगी भुगतनी थी।